एंड नारायण का तो गैम्बल है. नारायण, you will still keep him in the team because he's bowling well. To quote their former coach Baz McCullum, the last time he coached him, उन्होंने quote कही थी, if you can't change the man, change the man. तो अभी शायद change करने का मौका या time आ गया. Venki, Rinku, your batters only time in the middle. आप उनको immediately उस टाइम पे जाने बोल रहे हो जहाँ पे लोग स्पिन डालेंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्होंने अपने पिछले मैच में भाई साहब जो मतलब रायता फैलाया, मतलब जितना ज्यादा बात करो उतना कम है उनके लिए. Somesh, let's start with you. Kolkata Knight Riders aside, मतलब बहुत ही weirdly constructed. What's worked for them so far in this season? Okay, so last game definitely helped them on this particular parameter, but they've been mind-blowingly ahead of every other every other team on all bowling parameters. मतलब ऐसा कोई पैरामीटर मुझे नहीं दिख रहा है जिसमें वो नंबर 1 नहीं है. आप इकोनॉमी की बात करो, विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करो, उनका स्पिन यूनिट तो मतलब एक अलग ही यूनिवर्स में डील कर रहा है अभी इन टर्म्स ऑफ बोथ इकोनॉमी एंड विकेट टेकिंग एबिलिटी. अगर मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती इज डेफिनेटली द सेकंड बेस्ट बॉलर आफ्टर कुलदीप. Narayan is having yet another decent season with the ball. हर्षित राणा के नंबर्स बहुत अच्छे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई गेम जब वैभव अरोरा को मौका नहीं मिला बिकॉज उन्होंने इम्पैक्ट सब में मनीष पांडे को ले आए थे, बट जब भी वैभव अरोरा है he has picked up wickets with the new ball. Russell has been expensive, but as always he's been picking wickets. So apart from that overseas pacer, बाकी जितने भी bowlers उनकी लाइनअप में हैं they are doing their job very well. And अभी एक बहुत बड़ा गल्फ है between KKR and other teams when it comes to specifically bowling, but that doesn't mean कि the team has nothing to worry about. And I'm pretty sure कि निखिल बात करेंगे कि कहाँ KKR पे concerns हैं. Yeah, I mean spin unit तो काफी शानदार है उनका निखिल भाई, लेकिन there are a few things that have not worked for them. इसलिए 7 में से वो सिर्फ 4 जीत पाए. What are those things? ये तो जो कंसर्न है उसमें से देखो, एक तो I'll rub off that KKR MI game because that is the kind of game that can happen to a side which is wanting to impose themselves after having to bat first. तो वो game मैं discount कर रहा हूँ, but not the one against Punjab, because there is a pattern there and that pattern has been very evident right from the first game. So I feel two things have been their biggest problems. One is I would not call it obsession, but the want to really play Sunil Narine up top. Because what I don't understand is it is delaying their best batters who are not getting the best time. And we've discussed this. हमने पहले बात करी थी कि कैसे स्पिन के खिलाफ इन सभी के नंबर्स इतने बढ़िया नहीं है. मतलब they all struggle against spin. रहाणे, रघुवंशी, रिंकू, वेंकी, सबके नंबर्स अगेंस्ट स्पिन अगर आप देखें तो उतने बढ़िया नहीं. तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि वो सेटल्ड हो जब वो क्रीज पे है. तो अगर उनके एंट्री पॉइंट देखें तो ऐसा हो जा रहा है कि वेंकी इज बैटिंग एट 5 क्योंकि रघुवंशी 4 पे आ रहा है. तो when you are having your Venki, Rinku, your batters only time in the middle, आप उनको immediately उस टाइम पे जाने बोल रहे हो जहाँ पे लोग स्पिन डालेंगे, क्योंकि this has been a ruthless tournament. यहाँ पे कोई ऐसी टीम नहीं जिसका छोटा से छोटा वीकनेस एक्सप्लॉइट नहीं हो. So I think the obsession to having to play Narine up top, which it is not working on them because they have their overseas batter also not turning up at all. See, Quinton de Kock has had one great knock, but उसके अलावा उनसे शुरुआत ही नहीं मिली आपको. Because that has led to others. I mean, Rahane, अगर आप देखो, we discussed so much about Rahane कि कितना you can look into the smart form and other form. He's still holding himself well. उनके numbers decent है. रघुवंशी भी I think he's done fair for his spot. But if you don't have your overseas guy performing big way, बाकी सब पे pressure आएगा and it is resulting in the collapses. क्योंकि RCB game they go from 106 for 2 to 150 for 6. Then in the LSG game they had 90 in the power play. They went from 162 for 2 to 185 for 7. तो वहां पे वापस आपने कोलैप्स किया. And the last game again, the game that is there in history, 62 for 2 से 79 for 8. तो अब बैटिंग नंबर्स में ओवरऑल देखोगे तो ठीक है, मिडलिंग है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. बट वो मिडलिंग बनाए इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि एंट्री पॉइंट्स आई फील हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर देम. ये आपको एक गेम वेंकी ने निकाल के दिया विद रिंकू, बट वो गेम सेट हो गया था पहले. जहां पे गेम आपको सेट करना है वहां पे these collapses are happening because these people are coming at the wrong time for them in terms of facing spin. तो I have been on this road right from the start कि आप नरेन को बीच में यूज करो. It doesn't you don't have to worry कि नरेन का बेस्ट यूज क्या है. At this point of time you should be worried कि
वेंकी रिंकू सही जगह पे बैटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एंड हाउ डू यू वांट टू यूज रघुवंशी इफ यू वांट टू यूज हिम एट ऑल. तो या तो ओपन कराओ रहाणे और क्विंटन से, दैट इज आल्सो वे फॉर टू यू कैन पुट वेंकी एट 3 एंड देन यूज नरेन एज अ फ्लोटर. और अगर आपको क्विंटन से भी रन्स नहीं आ रहे, डू यू वांट टू गो टू गुलबाज? यू शुड, आई मीन अब तक आपको नंबर्स वैसे आए नहीं है कुछ, तो फिर देन हाउ विल यू टेक अ कॉल? 7 गेम्स पे 143 रन, 23 का एवरेज. तो that is you expect more from someone who's replacing Salt. Actually, just to add to what Nikhil is saying, अगर आप डायरेक्टली भी देखोगे ना तो बैटर्स का फॉर्म शुड बी अ कंसर्न फॉर देम यार. अगर सिर्फ नंबर्स भी उठा के देखोगे तो रसेल इज एवरेजिंग 6.8. पिछले मैच में उन्होंने 3 छक्के मारे, उसके बाद ही इज एवरेजिंग 6.8. रमनदीप इज एवरेजिंग 9.7. एंड उसके अलावा बैटिंग यूनिट में बहुत क्लियर ऐसे आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, जैसे क्विंटन डिकॉक अप टॉप अगेंस्ट स्पेस इज एवरेजिंग 14, रहाणे अगेंस्ट स्पेस स्पिन इज एवरेजिंग 18, वेंकी अय्यर अगेंस्ट बोथ इज एवरेजिंग बिलो 25. तो कहीं ना कहीं मतलब अगेन जो राजस्थान के लिए हमने बोला था कि नीतीश राणा आपके बेस्ट बैटर है, केकेआर के बेस्ट बैटर हैज बीन अंग्रीज रघुवंशी. तो अगर टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में कोई बोले कि यार he's played really well and he's been one of the most watchable batters of the season for me, but अगर कोई बोले कि वो आपकी टीम का बेस्ट बैटर है, he has to take up the load, then clearly you are struggling. and केकेआर ओवरऑल देखा जाए तो उनके बॉलर्स इतने सही हैं कि वो बोथ फोर्स एंड सिक्सेस पे पॉजिटिव हैं. दे आर पॉजिटिव 17 ऑन बाउंड्रीज, और आफ्टर 7 गेम्स मतलब हर मैच में अराउंड 2 बाउंड्रीज वो पॉजिटिव में. बट दे आर स्ट्रगलिंग ऑन अ वेरी बेसिक पैरामीटर जो थोड़ा टेक्निकल है, मैं एक्सप्लेन करूंगा. देयर नॉन बाउंड्री स्ट्राइक रेट इज 52. अब ऑन एन एवरेज हर गेम में टीम्स 120 बॉल्स खेलते हैं, तो आउट ऑफ देम 20 के अराउंड सब बाउंड्रीज मारते हैं ऑन एन एवरेज. कोई टीम ज्यादा भी मारती है ऑफ कोर्स. इसका मतलब आपकी 100 बॉल बाकी होती है, उसमें से उन 100 बॉल्स में से केकेआर सिर्फ 52 रन ही बना रहे हैं. बाकी टीम्स ऑन एवरेज उन 100 बॉल में 65 रन बनाते हैं. इस सीजन 65 बना रहे हैं, तो 13 रन का डिफरेंस वहीं आ रहा है. And 13 run difference in a T20 game is a very big difference because next best is 62 and they are 52. So ऐसा नहीं है कि they सिर्फ ranking में lower हैं, they are significantly lower and it's a difference of double digit runs, which is a lot of difference. So they need to look into it. ये थोड़ा basic है, थोड़ा technical है, but मैं बस सोच रहा था कि यार क्यों उनको लास्ट गेम में भी इतना मीडियोकर टारगेट चेस करने में गड़बड़ हुई, क्योंकि मतलब टेंडेंसी वैसी हो गई है कि यार बाउंड्रीज ही मारनी है, single double is not the option. So I think they need to go back to the drawing board and I think निखिल चाहेंगे कि रहाणे ओपन करे. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो मे बी ट्राई एंड ओपन विद अंग्रेज रघुवंशी. आई मीन माइट एज वेल गिव हिम द प्रॉपर रोल कि यार तुम ऊपर से खेलो और फिर नीचे तक यू बी देयर एंड कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट you'll get a player for the future, which he already is. He surely is. And Ronnie, just to confirm, of course, Somesh bhai, Russell is averaging 6 in IPL 2025, right? Yeah. Yeah, he's Exactly. 34 of 31. There you go. Another batter, of course, Quinton de Kock, जिनका जिक्र निखिल भाई ने पहले किया था. सोमेश, he so far scored 143 runs और उसमें भी एक नॉक था 97 का. वो अगर हटा दें तो बाकी के 6 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ कुल मिला के लगभग 50 रन बनाए, 45 से 50 रन. तो एक ऑप्शन तो है ही रहमानुल्लाह गुरबाज. Like Corner House mentions, do you think Lavneet Sisodia is another option they can look at? क्योंकि एकदम like for like है, aggressive, left-handed, keeper batter. बहुत मतलब उनके बारे में भी नाम सुना है, महाराजा ट्रॉफी में अच्छा किया था. आपको लगता है ऐसा एक अनकैप प्लेयर के पास भी वो जा सकते हैं? प्रॉब्ली वो ओवरसीज स्लॉट कहीं और फिर यूज कर सकते हैं. यार देखो, अभी तक जितना हमने देखा है कि टीम्स हैव बीन अटैकिंग विद स्पिन, तो उस अगर माइंडसेट में जाओगे तो आई मीन बहुत सिंपलिस्टिक कंक्लूजन है, बट दे हैव वन ऑल द गेम्स दैट मोइन हैज प्लेड और मोइन जो नहीं खेला वो सारे गेम्स वो हारे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि इससे कुछ इन्फर करना चाहिए, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अगर वो अंग्रेज को भी ओपन कराने भेजते हैं एंड देन इंक्लूड मोइन इंस्टेड ऑफ एन ओवरसीज पेसर, तो नेट मुझे कुछ नेगेटिव होता नहीं दिख रहा है. वैल्यू एड ही है, सो दे कैन प्ले अराउंड बिकॉज चाहिए यार कुछ डिफरेंट चाहिए. लास्ट सीजन दे वन बिकॉज दे हैड 2 सॉलिड ओपनर्स हु वर डिलीवरिंग. इस बार दोनों में से ही रन नहीं आ रहे, एंड नारायण का तो गैम्बल है. नारायण
you will still keep him in the team because he's bowling well. I'm smiling because this is a question that I brought up जब हम preview कर रहे थे. But yeah, I mean वो सिर्फ question था to have a discussion, not that कि मैं कुछ I meant differently. But yeah, the point is, if it's not working, they should be changing it. You can't just keep playing players for repetition. कि एक भाई है, देखा है, उसने किया है, करते जाओ. I mean, it's not going to help. Yeah, for sure. I mean, to quote their former coach Baz McCullum, the last time he coached him, उन्होंने quote कही थी, if you can't change the man, change the man. तो अभी शायद change करने का मौका या टाइम आ गया है. देखते हैं क्या होता है उनके साथ. And like Somesh mentioned, मोइन अली अब तक 3 मैचेस खेला और वो तीनों मैचेस केकेआर नहीं जीता है.